Special provision for certain classes. Constitutional background. The Indian Constitution guarantees equality to all, yet recognize the need for affirmative action to uplift historically disadvantaged sections. तो पार्ट जो है पार्ट 16 आर्टिकल 332 आर्टिकल 342A में स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेस को लेकर. प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर SC एंड ST. ठीक, क्या करता है? प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा. Provide for reservation of seats for SC ST in House of the People Lok Sabha. Seats are allocated to each state based on the proportion of SC ST in the population of that state as per latest census, currently 2011 के census के अकॉर्डिंग. ठीक है. Seats are allocated to each state based on the proportion of SC ST in population of that state as per latest census, currently 2011. Current data: out of 543 Lok Sabha seat, 84 seats are reserved for SC and 47 for ST. टोटल 131 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं. 84 SC के लिए और ST के लिए 47. इंदिरा साहनी केस 1992. While primarily about OBC reservation, it reiterated that reservation in legislature for SC ST is a political reservation, unlike reservation in jobs or education. जो इंदिरा साहनी केस में ये मतलब कंफर्म कर दिया गया था, जो SC ST का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो जो SC ST आर्टिकल 330 का रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ना कि एजुकेशन या जॉब्स में वो रिजर्वेशन. आर्टिकल 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा. अब इंड कर दिया गया. अलाउड प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट अप टू 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ दे आर नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेड. दिस प्रोविजन वाज रिमूव्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 29 इफेक्टिव ऑन 25 जनवरी 2020. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती कौन सी थी? A community of mixed Indian and European descent, mainly Christian, who traditionally served in administrative and rail services during British rule. उस समय के लोगों को. Article 332 Reservation in Legislative Assembly of State for SC ST. Reservation of state legislative assemblies for SC STs in proportion to their population in their respective states. Current status: continued through 104th constitutional amendment, providing reservation for SC ST in legislature for another 10 years till 2030. ये आर्टिकल 332 कहता है. 333 में क्या कहा गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन स्टेट असेंबलीज. अभी प्रोविज़न इंड कर दिया गया. अलाउड गवर्नर टू नॉमिनेट 1 member ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू स्टेट लेजिस्लेचर्स. दिस प्रोविज़न हैज़ आल्सो इंडेड एज पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 25th जनवरी 2020. ठीक है. आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC. Constitutional body to monitor, safeguard for SCs and advise on socio-economic development. For SCs and advise on socio-economic development. थ्री 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये 89th अमेंडमेंट में अलग किया गया, विच बाइफर्केटेड द ओरिजिनल SC ST कमीशन. करेंट चेयरमैन किशोर मकवाना जी हैं. फंक्शन क्या है? इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, एडवाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003
to separate focus on ST related issues. Previously, under SC ST combined commission, functions similar to National Commission of Scheduled Caste, investigate and monitor protection measures for STs, evaluate development efforts, and make policy recommendations. Article 338A के तहत Article 340 Commission for Backward Classes, enabling article empowers President to appoint a commission to investigate the condition of socially and educationally backward classes. Socially and educationally backward classes. Major commission formed. फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काका कालेकर 1953 में बना था। फिर हुआ सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन 1979 में ये मामला आया। ठीक है। आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट, प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई एनी कास्ट एज शेड्यूल कास्ट इन रिलेशन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट के रूप में। आर्टिकल 341 मतलब उस वहाँ के गवर्नर से बात करने के बाद वहाँ के किसी भी सेक्शन को वो SC या ST में स्पेसिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स, similar to Article 351 but not for scheduled tribes, but for scheduled tribes। SC या ST को किसके नोटिफिकेशन से वो माना जाएगा, तो वो प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से माना जाएगा। ये मामला है। आर्टिकल 342A इंसर्टेड बाई 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। क्या था इसमें? स्पेसिफाई दैट ओनली द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर कैन इंक्लूड या एक्सक्लूड एनी कम्युनिटी इन द सेंट्रल OBC लिस्ट, गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। कब मिला ये? 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को मान्यता मिली आर्टिकल 342A के तहत। Amendment incites Article 104 Constitutional Amendment Act 2019 abolished the provision of Anglo-Indian nomination in Lok Sabha and State Assembly, extended SC/ST reservation legislature for 10 more years till 25 January 2030। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 330 लोकसभा रिजर्वेशन फॉर SC/ST, 331 एंग्लो इंडियन, ये इंड कर दिया गया 104th अमेंडमेंट द्वारा। आर्टिकल 338 NC और SC मतलब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मंडल आयोग द्वारा। ठीक। आर्टिकल 342A फॉर OBCs 102nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। बैकवर्ड क्लासेस मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया आर्टिकल 242A। ठीक है, अब आते हैं हम लोग PYQs पे। पार्ट 16 फ्रॉम आर्टिकल 330 to 342 of the Indian Constitution deal with reservation of SC/ST and representation of Anglo-Indian community in the House of People। तो पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल 330 to 342 ensures political and administrative safeguards for SC and ST and previously the Anglo-Indian community। Administrative tribunals covered under Article 323A and 323B in Part 14A इंट्रोड्यूस्ड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये ध्यान रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आई थी। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 to 312A पार्ट 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14 का हिस्सा है वो। फाइनेंस कमीशन डील विथ अंडर आर्टिकल 280 पार्ट 12 का हिस्सा है।
Reservation of seat of SC, ST and representation of Anglo-Indian. This is the actual content of Part 16. Initially, it included Anglo-Indian, Article 331, 333. But 104th Constitutional Amendment Act 2019 abolished the provision for nominating Anglo-Indians effective 25th January 2020. Okay. Under Indian Constitution, provision for scheduled tribes in Lok Sabha has been made under Article 330. 331 में एंग्लो इंडियन, 333, 331, 332 में स्टेट असेंबलीज को लेकर, 333 में स्टेट असेंबली एंग्लो इंडियन, ये वाला मामला था। Article 330 provides for reservation of seats in Lok Sabha for SC, ST based on population proportion in each state or union territory. ठीक है। Article 330, this article reserves seat for SC, ST in Lok Sabha. 331 allows the president to nominate Anglo-Indian members in Lok Sabha, now discontinued. Article 332 deal with reservation of seat of SC, ST in state legislature assembly. Article 333 allows governor to nominate Anglo-Indian to state assembly. ठीक, authority to specify as to which caste shall be deemed to be scheduled caste react with the president. Article 341, the president after consultation with governor specifies caste races as supreme as SC scheduled caste through a public notification. Parliament holds the exclusive power to amend the list, नॉट स्टेट गवर्नमेंट्स। पार्लियामेंट के पास ये वो होता है। कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स नो एडवाइजरी बॉडी है ये। कमीशन जो है, कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स has no legislative or executive authority to notify caste. Prime Minister plays a political role but no constitutional authority to notify supreme scheduled caste. Governor of the state only consulted, does not hold final authority. President as per Article 341(1) for supreme scheduled caste and Article 342(1) for scheduled tribes. Which statement is not correct? The list of supreme scheduled caste and scheduled tribes are prepared and amended by concerned state governments. नहीं, पार्लियामेंट ये सब करती है। ठीक, और प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं। Only parliament has the power to amend the SC ST list as per article 341(2) and 342(2). State government can recommend changes but can't amend the list. Initial SC ST lists were notified by the President in 1950 under the Constitution, Scheduled Caste Order 1950 and Scheduled Caste Order Tribe 1950. Amendments to these lists require a law by Parliament, not executive order. Law चाहिए. State government do not prepare amend SC ST list. They may propose changes, but only Parliament can enact them. A tribe can be declared a scheduled tribe for only a specific region or part of the state, not necessarily the whole state. Article 342 supports regional specificity. Article 342 एक पर्टिकुलर रीजन में वो SC ST हो सकते हैं, सॉरी ST हो सकते हैं। Scheduled tribe status is religiously neutral. Scheduled tribes are not restricted to any religion. This is contrast to scheduled caste, which is historically linked to Hinduism, but were later extended to Sikh 1956 and Buddhist Dalits. Sikh 1956 और बुद्धिस्ट दलित 1990. Restricted to Hindus applies only to SCs, not STs. Religiously neutral. Anyone from any religion can be scheduled tribe as per Constitution's Order 1950. Constitution Supreme Scheduled Tribes Order 1950. Rangnath Mishra Commission 2017 recommend extending scheduled caste status to Dalits of all religion, not just Hindu, Sikh and Buddhist. तो देखा जाए
हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट? से तीन लोगों में ही वो शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट में। हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट। This was later amended in 1956 and 1990 to include Dalits who had converted to Sikh and Buddhism, respectively, as scheduled caste. However, Dalit communities who had converted led to Islam or Christianity are not currently included to scheduled caste list. ओके, मतलब जो 1956 से पहले सिख बन गए थे और 1990 से पहले बुद्धिस्ट हो गए थे, वो यसीज में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाले बुद्धिस्ट दलित 1956 में सिख को शामिल किया गया और 1990 में बुद्धिस्ट को शामिल किया गया। ठीक है। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा। आर्टिकल 331 रिपेल कर दिया गया है। ठीक। आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 332 रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबली फॉर SC/ST। 333 ये डिसकंटिन्यू हो गया। 338 नेशनल कमीशन फॉर SC। आर्टिकल 338A STs के लिए नेशनल कमीशन फॉर ST। आर्टिकल 340 कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक। ये कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जैसे मंडल कमीशन, काका केलकर कमीशन। आर्टिकल 341 SC नोटिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट। 342 ST नोटिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट। 342A सेंट्रल OBC लिस्ट एडेड बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट 2018। 104th Amendment Act 2019 ended nominations of Anglo-Indians in legislature, extended SC/ST reservation in legislature to 2030। 2021 में क्या हुआ? SC की सीट्स 84 रिजर्व सीट्स लोकसभा सीट, ST की 47 सीट्स। 2024 इलेक्शन दीज रिजर्वेशंस रिमेन इन इफेक्ट। ठीक है, अभी भी ये रिजर्वेशंस अफेक्टेड है। Specification required for a community to declared as scheduled tribes are: the constitution does not define scheduled tribes explicitly, but over the years the government and judiciary have evolved the following criteria: Ministry of Tribal Affairs and Lokur Committee। लोकुर कमेटी किसके लिए बनी थी? ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1965। क्या? इंडिकेशन ऑफ प्राइमेरी राइट्स, प्राइमेरी जो पहले से वो मामला चलते आ रहा है। refers to pre-agricultural technology, economy and low literacy, outdated but still part of classification criteria। Distinctive cultures include language, custom, rituals, festivals and social practices distinct from mainstream society। Shyness of contact with community at large। हाँ, मतलब कम्युनिटी से कांटेक्ट से दूर थे, कम्युनिटी के कांटेक्ट से। ठीक, बहुत समय से। हिस्टोरिकल सोशल आइसोलेशन ड्यू टू जियोग्राफी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। दीज इंडिकेटर्स आर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 342 to 366/25 but they have been followed as executive convention by the office of the registrar general and ministry of tribal affairs। मतलब इसको माना जाता है। number of castes in the list of SCs after the amendment of the 14th August 2007। तो
1206 एससी कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जातियां जो हैं वो अभी, लेकिन अभी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 द काउंट वाज रिवाइज्ड टू 1261 एससी शेड्यूल कास्ट। करंट डाटा क्या है? लगभग एससी का पॉपुलेशन है 16.6%, लगभग 20.14 करोड़, और एसटी का पॉपुलेशन 8.6% है, लगभग 10.45 करोड़। एससी यानी एसटी। तो अभी एससी की जातियां कितनी हैं? 1261। स्टेट है मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश has the highest tribal population in absolute numbers, followed by मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, फिर गुजरात। यहाँ एसटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हैं मिजोरम में, फिर नागालैंड में सबसे अधिक 94.4%, मिजोरम, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, अरुणाचल 68.8%। यहाँ टॉप स्टेट्स बाई एसटी एब्सोल्यूट नंबर्स, तो मध्य प्रदेश 1.53 करोड़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक, बिहार लो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। जो टॉप स्टेट्स हैं अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मेघालय, फिर आता है अरुणाचल। नागालैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ एनी कास्ट। तो राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी भी कास्ट के लिए कोई भी वो मतलब रिजर्वेशन नहीं है। एक चीज़ और देख लिया जाए, टॉप स्टेट्स बाय एसटी एब्सोल्यूट नंबर्स, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में है। ठीक, आर्टिकल 330 एंड 332 प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओनली इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज और लोकसभा में, बस ये ध्यान रहे। लेकिन राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जम्मू कश्मीर नोट, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 it became a union territory. Legislative council was abolished and assembly now include reservation for SC ST as per union territory law. ठीक, अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी रिजर्वेशन लागू है फॉर SC एंड ST एज पर यूनियन टेरिटरी लॉ। Provision of National Commission for Scheduled Tribes is given in which आर्टिकल। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 338 में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 338A में, और OBCs के लिए 342 में। ठीक, नहीं 342A में शायद है। OBCs के लिए 342A, हाँ
340 कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और 342 ए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। 342 तो ये कहता है कि कौन कौन एसटी हैं, उनकी लिस्ट के बारे में कि प्रेसिडेंट बताएंगे। राज्यसभा नो रिजर्वेशन। अच्छा, ओरिजिनली आर्टिकल 338 प्रोवाइड फॉर ए सिंगल कमीशन फॉर SC/ST, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद क्रिएटेड टू सेपरेट बॉडीज। 338 नेशनल कमीशन फॉर SC, 338A नेशनल कमीशन फॉर ST। इस कमीशन स्ट्रक्चर क्या है 338 और 338 में? एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, ठीक, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ 5 की होगी, ठीक, और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 341 अबाउट नोटिफाइंग शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 16 जनरल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन क्लॉज 16(4). आर्टिकल 18 रिलेटेड टू रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 किससे डील करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 provides the National Commission for Scheduled Caste. Originally, it was a single commission in both SC and ST, but 89th Constitutional Amendment Act 2003 bifurcated into two, Article 338 and 338A. ठीक, नेशनल कमीशन फॉर ST ये 338 में आता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट इज़ अंडर स्टैच्यू नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल status via 102nd Amendment Act 2018 and added Article 338B। 338B के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना 102nd Amendment Act 2018 में। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, इट इज ए स्टैच्यूरी बॉडी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 338 SC, 338A ST, 338B OBC, National Commission for OBC. Under which article has the National Commission for SCs has been constituted? Article 338 empowers the president to 338 empowers the president to appoint a multi-member body for Supreme Court related scheduled caste related safeguards. स्ट्रक्चर क्या है? एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। फंक्शंस इंक्लूड इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स, एडवाइजिंग ऑन प्लानिंग, मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन लॉज, सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 332 डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, और 330 डील करता है लोकसभा के लिए SC ST रिजर्वेशन के लिए। आर्टिकल 332 refers to identification of STs, scheduled tribes. Article 328 relates to state legislature and elections, not relevant here. Under which article is the National Commission for STs constituted? Under which article is the National Commission for ST? Under which article is the National Commission for STs constituted? Article 338A के तहत। 89th Constitutional Amendment Act 2003 and came into force in 2004. National Commission for Scheduled Tribes. Article 338A was inserted to specifically deal with scheduled tribes. Functions similar to NCSC but extensively for STs. Also include monitoring a scheduled tribe specific scheme like Forest Right Act 2006, PESA, etc. Article 337 relates to grant for Anglo-Indian education, not relevant, अभी कोई मामला नहीं। 338 ये शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल ट्राइब, 338 बी नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लाइक मंडल कमीशन, ये मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो वो बनेंगे उसके लिए ये है। टोटल मेंबर्स इन NC मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो मेंबर्स 3 हैं एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट को ले लिया जाए तो 5 हो जाएंगे, ठीक। टोटल कंपोजिशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 338A के तहत 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 3 फुल टाइम मेंबर्स, एटलीस्ट 1 मस्ट बी ए वुमेन, तो टोटल 5 मेंबर्स। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, टेन्योर 3 years, रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट एनुअली, हर साल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ह्यूमन राइट नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है या ना, ये नहीं, ये वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा NCST को बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ट्राइब्स, आर्टिकल 338A, NIA स्टैट्यूटरी बॉडी है, NIA एक्ट 2008 के तहत। एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन, NDMA स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा वाज मेड अंडर आर्टिकल 331, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको हटा दिया गया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल 81, द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 members ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। This provision has been discontinued via 104th Constitutional Amendment Act 2019 effective 25 January 2010, ठीक। आर्टिकल 331, 221 सैलरीज ऑफ जजेस, आर्टिकल 121 पार्लियामेंट कांट डिस्कस कंडक्ट ऑफ जजेस, आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट्स पावर्स। इनिशियली पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज अंडर पार्ट 16, लेकिन was seen as nominative political safeguard, now discontinued due to lack distinct Anglo-Indian population. 2011 census reported 0 Anglo-Indians, though disputed. The provision for representation of Anglo-Indian community in Lok Sabha is under which article? Article 331. Notwithstanding anything in Article 81, the President may, if he is of the opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of People, nominate not more than 2 members of that community to that Lok Sabha. This special nomination provision was discontinued by 104th Constitutional Amendment Act 2019, effective 25 January 2020. Article 121, Parliament can't discuss the conduct of judges, judicial independence. Article 139, deal with power of Supreme Court to issue writs. Article 221, related to salary of High Court judges. Article 331, Anglo-Indian nomination in Lok Sabha, ठीक है। Which article is related to Anglo-Indian representation in state legislative assemblies? तो आर्टिकल 333। ये भी क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। इसमें गवर्नर में नॉमिनेट वन एंग्लो इंडियन मेंबर टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। दिस प्रोविजन वाज आल्सो इंडियन बाय 104th अमेंडमेंट एक्ट 2009। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन वो कर किए जा सकते थे, स्टेट असेंबलीज में 1। आर्टिकल 334, ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लेजिस्लेचर, ओरिजिनली 10 years, अभी एक्सटेंड कर दिया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2030 तक।
Article 332 Reservation of SC/ST in State Assembly. 335 Claim for SC/STs in services and posts. 89th Amendment 1993 देखिए, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992, NCBC एक्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993, फर्स्ट सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नाउ मेड constitutional in 2018 via 102nd Constitutional Amendment Act. Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 prohibits child labor under 14 in hazardous job. 14 साल से कम के मतलब बच्चों को अगर hazardous जॉब है तो वो नहीं कर सकते. पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 ensured equal opportunity, rights and participation, replaced in 2016 by Rights of Person with Disabilities Act 2016, now covers 21 disabilities. Rights of Person with Disabilities Act 2016. अभी 21 तरीके से 21 तरीके की डिसेबिलिटीज़ कंसीडर की जाती हैं. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट पास्ड इन 1992, सो नॉट लिस्टेड इन द गिवन ऑप्शन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं, नेशनल लॉ कमीशन नहीं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन नहीं. सिर्फ एक NCBC constitutional body under Article 338B established via 102nd Amendment Act 2018. NHRC statutory body under Protection of Human Rights Act 1993. Law Commission executive body है ये, formed by Union Government from time to time, not statutory or constitutional. NHDRC quasi judicial statutory body under Consumer Protection Act 1986. एक क्वेसी जुडिशियली बॉडी है, ये फैसला भी सुना सकती है. विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ NCBC? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंसर्टेड आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. Inserted Article 342A power of President to notify socially and educationally backward classes. 342A ये 105th Constitutional Amendment में ये तय किया गया. Earlier National Commission for Backward Classes 1993 was a statutory body. Post 2018 National Commission for Backward Classes became a constitutional body. ठीक, similar to Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes. Who was the first chairman of the Backward Classes Commission? Kaka Sahab Kalekar, 1953, appointed in January 29, 1953. First Backward Classes Commission, inaugurated on 18 March 1953. Chairman Kaka Sahab Kalekar, based on Article 340 of the Constitution. Kaka Kalekar fact. Full name Dattatreya Balkrishna Kalekar, known Gandhian educationalist and journalist. Recommended economic criteria for backwardness which were rejected by Nehru. The second commission was Mandal Commission 1979 under BP Mandal, which was used social, educational and economic indicators. ठीक है. National Commission for अच्छा National Commissions for SC, ST, backward क्लास एंड माइनॉरिटीज़. SC के लिए 338, ST के लिए 338A, OBCs के लिए 338B. माइनॉरिटीज कमीशन इज स्टिल स्टैच्यूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. SC पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अनुसार 16.6%, लगभग 20 करोड़ हैं. ST पॉपुलेशन 8.6 करोड़, 10 करोड़ हैं लगभग. OBCs 40 मतलब NSSO 2007 के अकॉर्डिंग 41%.
though no official census data exist. Bihar released caste survey data in 2023. अच्छा, new laws affecting commission functions. 2009 में 104th Amendment removed Anglo-Indian nomination and extended SC/ST reservation in legislatures till 2030. National Commission of Backward Roll Post 102nd Amendment has expanded, now included in OBC welfare scheme audits. Under which article can President specify SEBCs? Article 342A included, added by 102nd Constitutional Amendment Act. 342A के तहत ये सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ कंपोजिशन ऑफ NCST? 3 years है टेन्योर और 5 मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स. विच कमीशन मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशा एंड FRA एक्ट? तो शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Why was Kalekar Commission report rejected? It recommended economic criteria over social background, which was politically controversial. इस वजह से मामला गड़बड़ हो गया. अब ये देखते हैं 61st Amendment 1990 made multi-member SC/ST Commission under Article 338. 89th Amendment Act 2003 split NCST और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को बांट दिया और ऐड किया आर्टिकल 338A 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो आर्टिकल 338B के अकॉर्डिंग आर्टिकल 104 2009 इंडेड एंग्लो-इंडियन nomination in legislatures. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन होती हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, आर्टिकल्स में हो, जो जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस. स्टेचुअरी पार्लियामेंट एक्ट जैसे NHRC, NCW, NCPRC. एक्सिक्यूटिव ऑर्डर पे जो आती हैं जैसे लॉ कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया या नीति आयोग हो गया. हाँ, ये है SC/ST रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर. 330 लोकसभा के लिए, 332 ये है स्टेट असेंबलीज के लिए. एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन 331 333 अब रिमूव कर दिया गया. कमीशन फॉर SC/ST 338A 338A मतलब 338A 338B. नोटिफिकेशन ऑफ कास्ट 341 में SC के बारे में बताया गया, 342 में ST के बारे में, 342A SC/BSC मतलब स्पेशल कृष्णा. बैकवर्ड क्लास कमीशन 340. सेफगार्ड इन सर्विसेज 335. ठीक, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है. थैंक यू. बाय.